Good afternoon, students. Today we will continue with sequence series, जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. Today we will study geometric progression, जिसको हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं. जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा है, क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अगर कोई सीक्वेंस है, अगर कोई भी टर्म हम लेते हैं, nth टर्म माइनस इट इज प्रीवियस टर्म an minus 1, that is always a constant. That constant is called a common difference. In any term minus the previous term is always constant. इस constant को हम बोलते हैं common difference. इसी तरह GP में क्या है? Any term divided by the previous term is always a constant that we denote by R. This R is known as common ratio. ये भी constant होता है और इस R को यहाँ पर हम बोलते हैं common ratio. अगर ऐसा होता है then such a sequence is known as a geometric progression. AP में होता है any term minus the previous term is always constant, which is called the common difference. और GP में होता है any term divided by the previous term is always a constant, which is known as a geometric progression. Also in short that is known as GP. अब क्या होता है GP में? हम we can say a sequence. डेफिनेशन में हम कैसे लिखेंगे GP का? Sequence A1, A2, A3, so on up to AN is called a GP if A2 by A1 is equal to A3 by A2 is equal to A4 by A3, so on, is equal to AN by AN minus 1, and each is equal to something is equal to R. It is a constant where R is a constant or is a constant called common ratio. कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं जीपी, या इन शॉर्ट हम लिखते हैं ऐसे ही, दैट इज एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 इज इक्वल टू आर और ऑल एन इज इक्वल फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स है. अगर ऐसा है दैट इट इज कॉल्ड ए जीपी. और वी कैन आल्सो डिफाइन इट लाइक दिस: एनी सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, so on is called a geometric progression. Any sequence of the form AR square, AR cube, so on, it's called a geometric progression. A is called the first term and R is called the common ratio. अब देखो, this divided by this वो भी R आएगा, third term divided by second term वो भी R आएगा, fourth term divided by third term वो भी आएगा. यानी any term divided by the previous term, the preceding term, is always a constant, then it is a GP. For example, let me take some examples. For example, if I take 2, 6, 18, 54, so on, this is a GP. क्यों? अगर आप देखोगे 6 by 2 वो भी 3 है, 18 by 6 वो भी 3 है, इसी तरह 54 by 18 वो भी 3 है. ये जो कांस्टेंट, जो कॉमन रेशियो है, दैट इज ए कांस्टेंट, सो इट इज कॉल्ड ए जीपी. हियर ए इज द फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट जो कॉमन रेशियो है वो 3 है. 2 into 3 6, 6 into 3 18, 18 into 3 54, and so on. Or let me take one more example. It is 1 minus 1 by 2, 1 by 4 minus 1 by 8. क्या ये जीपी है? ये भी जीपी है. कैसे करो? दिस डिवाइड बाई दिस, माइनस 1 by 2 डिवाइड बाई 1 वो आएगा माइनस 1 by 2. आप करो दिस डिवाइड बाई दिस, 1 by 4 डिवाइड बाई माइनस 1 by 2 वो किसके बराबर आएगा? 1 by 4 इंटू माइनस 2 by 1 और वो भी आएगा माइनस 1 by 2. इसी तरह आप दिस डिवाइड बाई दिस करो वो भी आएगा माइनस 1 by 2. या आप ऐसे देख सकते हो, 1 को माइनस 1 by 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? माइनस 1 by 2.
-1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 1/4, इसको मल्टीप्लाई करो -1/2 से -1/8. So this is also a GP with first term A is equal to 1 and common ratio R is equal to -1/2. So this is called a geometric progression. यानी क्या होती है geometric progression? Any sequence of the form AR square one of AR cube is called a geometric progression. Or a sequence in which any term divided by the previous term, preceding term is always constant, then it is called a GP. अब GP में आपको है, कभी आप 10th टर्म निकालो, 15th टर्म निकालो, 100th टर्म निकालो, हम कैसे निकालते हैं, यानी जनरल टर्म ऑफ GP हम कैसे निकालते हैं. जनरल टर्म ऑफ GP वो हम कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो. देयरफॉर GP क्या बनेगा, अगर फर्स्ट टर्म है तो GP बनेगा A, सेकंड टर्म बनेगी AR, थर्ड टर्म बनेगी AR स्क्वायर और फिर बनेगा AR क्यूब बाय द डेफिनेशन. ये जैसे मैंने यहां लिखा. अब यहां पर देखो, जो फर्स्ट टर्म है A1 दैट इज A, जो सेकंड टर्म है A2 वो है AR, A3 क्या है, A3 है AR स्क्वायर. अगर आप A4 भी लोगे, ये क्या है AR क्यूब. देखो अगर आप देखोगे ये है AR रेज पावर 4 - 1, AR स्क्वायर है. ये क्या है, ये AR रेज पावर, जब यहाँ 3 है यहाँ 2 है, जाएगा 3 - 1. ये क्या है AR, ये AR रेज पावर 2 - 1. अगर इसको भी करोगे ये भी आप लिख सकते AR रेज पावर 1 - 1. सो फर्स्ट टर्म इज AR. ये तो आप देखो सेकंड टर्म 2 - 1, 3 में आता है 3 - 1, फोर्थ में आता है 4 - 1. देयरफॉर जो AN होगा वो क्या आएगा AR रेज पावर, यहाँ जो 4 है 4 - 1, 3 है 3 - 1. तो प्रोसीडिंग इन द सेम वे AN आएगा AR रेज पावर n - 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द GP. तो GP में आपको याद रखना है जो nth टर्म है ये किसके बराबर होता है AR रेज पावर n - 1. और AP में AN किसके बराबर होता है, AP में होता है A प्लस, याद है, n - 1 इंटू डी. ये AP के लिए, लेकिन अब हम GP कर रहे हैं GP के लिए. ठीक है, तो इस पर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे. तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, अगर वहां से ही लिखा है दिस इज AP GP तो फिर इट इज क्लियर. अगर नहीं तो आपको देखना है कि जो ये क्वेश्चन है AP का है या GP का है. लेट मी टेक हियर अ क्वेश्चन. फाइंड the 20th term and nth term of the GP of the geometric progression 5/2, 5/4, 5/8. ये उधर से ही लिखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अगर नहीं लिखा होगा तो आपको प्रूव करना पड़ता है पहले ये कौन सी प्रोग्रेशन है. अब यहां पर सबसे पहले कैसे हम निकालेंगे 20th टर्म एंड nth. दिस इज वेरी सिंपल. जो आपका फर्स्ट टर्म है A किसके बराबर है 5/2. फिर आपको कॉमन रेशियो R निकालना है, वो किसके बराबर है A2/A1 और A3/A2 जो मर्जी, दैट इज 5/4 डिवाइड बाय 5/2. ठीक है, या 5/8 डिवाइड बाय 5/4, क्योंकि GP है कॉमन रेशियो सेम होगा. तो कॉमन रेशियो हम निकालते हैं एनी टर्म डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म, दैट इज 5/4 इंटू 2/5, 5 कैंसल, 2/4 दैट इज 1/2. यानी कॉमन रेशियो इसका है 1/2. यहां से भी आप देख सकते हो 5/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 5/4, 5/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो 5/8. So this your first term is A is 5/2 and common ratio R is 1. अब आपको क्या निकाल दिया है 20th टर्म. सबसे पहले हम लिखेंगे जो TN है AN. nth टर्म किसके बराबर होता है, nth टर्म होता है AR रेज पावर n - 1. आपको nth टर्म भी निकालना है, चलो पहले nth टर्म भी निकालते हैं. Therefore ये क्या है A is 5/2 into R क्या है, R है 1/2 रेज पावर n - 1. तो या फार्मूला लिख सकते हो, या अगर दोबारा सिंप्लीफाई करो ये आएगा 5/2, यहाँ आएगा 2 रेज पावर 2 into 2 रेज पावर n - 1. सो वी कैन राइट
an is equal to 5 by, when these are same powers are added, 2 raised power n, 2 raised power n. ये आएगा 2 raised power 1, 1 plus n minus 1, that is 2 raised power n. ये हो गया nth टर्म। लेकिन आपको निकालनी है 20th टर्म, जो इसका और एक पार्ट है, दैट इज 20th टर्म। हम कैसे निकालें? या तो इस पे दोगे, n की जगह दोगे 20, दैट्स योर आंसर। ये 5 by 2 raised power 20, वो भी आंसर है। या डायरेक्टली अगर निकाल सकते हो, दैट इज a r is power 20 minus 1, that is 19. a is 5 by 2, r is 1 by 2 raised power 19. ये हो गया 5 by 2 into 1 raised power 19 is 1 by 2 raised power 19. When these are same powers are added, so I got t raised power, this is 5 by 2 raised power 20. ठीक है, ये हो गया आंसर। यहाँ पर भी हम अगर n को दूंगे 20, वही आएगा 5 by 2 raised power 20. वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको nth टर्म, आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो निकालो, देन यू कैन फाइंड एनी ऑफ। लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस। Second question is, which term of the sequence? Which term of the sequence 2, 2 root 2, 4, 4 root 2, so on, is 128. Which term of the sequence 2, 2 root 2, 4, 4 root 2 is 128. यहाँ पर मैंने नहीं लिखा ये AP है, ये GP है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको देखना ये कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर आप देखोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस माइनस दिस इज नॉट दिस माइनस दिस, वो बराबर नहीं है। अब GP के लिए अगर हम देखेंगे सोल्यूशन में, अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो A है फर्स्ट टर्म में 2, अब हम देखेंगे क्या दिस बाय दिस, क्या दिस बाय दिस सेम है? 2 रूट 2 बाय 2 वो आएगा रूट 2, दिस डिवाइड बाय दिस। अगर दिस बाय दिस करेंगे आल्सो 4 बाय 2 रूट 2, वो आएगा 2 1 2 2 दैट इज 2 बाय रूट 2। 2 बाय रूट 2 को रैशनलाइज करना आपको आएगा, वो भी रूट 2 आएगा, यानी कॉमन रेशियो सेम है। ऐसे भी आप देख सकते हो, 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2 रूट 2। इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू 2 हो गया 4। इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 4 रूट 2। तो क्लियरली दिस इज ए GP। सो द गिवन सीक्वेंस, सो द गिवन सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ, ये तो ऑलरेडी हमने लिखा है, तो दोबारा लिखते हैं, विथ A is equal to 2 and R is equal to root 2। ये दिस इज गिवन। अब आपको क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी टर्म 128 होगी, 128 कौन सी टर्म होगी। हम सपोज करेंगे लेट an be 128, तो फिर n का वैल्यू निकालना, दैट्स योर आंसर। लेट nth टर्म an is equal to 128। अभी हमने क्या, an किसके बराबर होता है? a r is power n minus 1 is 128। अब वैल्यू दो, a का वैल्यू दो, r का वैल्यू दो। द वैल्यू ऑफ a इज 2, r का वैल्यू क्या है? दैट इज रूट 2, 2 इंटू रूट 2, रेज पावर क्या आएगा? n minus 1 is 128। ठीक है, अब ये कैसे आप सिंप्लीफाई करो, इसमें बहुत तरीके हैं। एक तो ये भी बनेगा जैसे मर्जी, ने रूट 2 रेज पावर n माइनस 1 इसको 128 बाई 2 भी कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 6 2 4। ठीक है, रूट 2 का मतलब क्या होता है? रूट 2 होता है 2 रेज पावर 1 बाई 2, 2 रेज पावर 1 बाई 2 रेज पावर n माइनस 1 इक्वल टू 64। ठीक है, ये बनेगा 2 रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 64। आप इस 64 भी 2 रेज पावर बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 रेज पावर 6।
2 into 2 into 2 is 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 8s are 64, so it is 2 raised power 6. What does employ? It employs n minus 1 by 2 is equal to 6. It employs n minus 1 is equal to 12. Therefore n क्या आएगा? Therefore आएगा 12 plus 1, that is 13. आपको निकालना था कि 128 कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म होगी? Therefore 128 is 13th term, is 13th term. बिल्कुल सिंपल केस है. सबसे पहले हमने देखा क्या ये एपी है या जीपी है, इसमें हमने दिस डिवाइड बाय दिस, वो भी √2 आया, फिर दिस डिवाइड बाय दिस आया, वो भी √2 आया. इन्हें कॉमन रेशियो सेम है, दैट मींस इट इज अ जीपी. अब ए आ गया 2, आर आ गया √2. अब ये दिखाना है आपको 128 कौन सी टर्म है. इसके लिए हमने क्या किया, लेट एन टर्म बी 128, तो ये लिखा लेट ए एन इसको 128, वो आएगा फॉर्मूला दिया ए आर इज फॉर एन माइनस 1 इसको 128, ए का वैल्यू दिया, आर का वैल्यू दिया, फिर सिंप्लीफाई किया, एन का वैल्यू आ गया 13. इसका मतलब है दिस इज द 13th टर्म, 128 इज द 13th टर्म. The next question is, third question, find 4 numbers in GP in which the third term is greater than first by 9 and second term is greater than fourth term by 18. तो आपको 4 नंबर्स GP में निकालने हैं जिसमें थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है 9 और सेकंड टर्म फोर्थ टर्म से कितना ज्यादा है दैट इज 18. तो आपको 4 नंबर्स निकालने हैं GP. तो हम लिखेंगे सिंपली लेट AR square and AR cube be the 4 numbers in GP. ठीक है. Now what is given? It is given that in which the third term होते हैं A3 is greater than first term होता है A1 by 9. ये होगी पहली कंडीशन. थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9. A3 क्या होता है AR स्क्वायर, या अगर यहां पर भी देखोगे दैट इज AR स्क्वायर, इसको A1 हो गया A प्लस 9. इसको थोड़ा सा एक साइड करते हैं अननोन, इसको AR स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 9. A को कॉमन लो, A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 नेम्ड एज फर्स्ट. ठीक है. उसके बाद और क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, आल्सो इट इज गिवन दैट, क्या दिया गया है, सेकंड टर्म होगी A2 इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18, A4 प्लस 18. ये भी दिया गया है. पहले था थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9, अब है सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18. अब ये तो A2 हो गया, दैट इज सेकंड टर्म, दैट इज AR. यहां पर देखो आप, यहां पर भी सेकंड टर्म AR इज A4 क्या होता है, दैट इज AR क्यूब प्लस 18. ठीक है. इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. ये आएगा, एक साइड करो, ये आएगा AR माइनस AR क्यूब इक्वल टू 18. अगर मैं AR निकालूंगा यहां से कॉमन, यहां आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18. ठीक है. यहां पर आया A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, यहां आया AR इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18. अब ये और ये यहां पर आर स्क्वायर माइनस 1 है, यहां 1 माइनस आर स्क्वायर. लेट मी टेक माइनस कॉमन, मैं माइनस भी लूंगा कॉमन, ये आएगा माइनस, जब कॉमन लेंगे ये आएगा माइनस AR इंटू फिर क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18. ये क्यों किया, क्योंकि यहां पर भी आर स्क्वायर माइनस 1 है, आर स्क्वायर. इन दो को सॉल्व करने में आप इजी हो गए. दीज आर नॉट इजी टू सॉल्व. इसमें हम क्या करेंगे, हम इन विच द थर्ड, हाँ, इसको मैं डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट. तो ये आएगा एम्प्लॉयज माइनस AR इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई क्या आएगा
डिवाइड बाय आएगा a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, इसके बराबर आएगा वो आएगा 18 डिवाइड बाय क्या आएगा 9, आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसल, आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसल, ए एंड ए कैंसल, दैट एम्प्लॉइज माइनस आर इक्वल टू 2, देयरफॉर जो आर आएगा दैट इक्वल टू माइनस, आर का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, आर का वैल्यू किसी में सबस्टिट्यूट करेंगे या फर्स्ट या सेकंड में, वहां से निकलेगा ए का वैल्यू, सबस्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा a इंटू आर स्क्वायर हो गया माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 9, वो आएगा 3a, 4 माइनस 1 हो गया 3a इक्वल टू 9, देयरफॉर a इक्वल टू 3, a भी आ गया r भी आ गया, देयरफॉर द 4 नंबर्स इन GPR, देयरफॉर 4 नंबर्स इन GPR क्या है वो 4 नंबर्स, AR स्क्वायर एंड AR क्यूब, दैट इज A क्या है, A है 3, अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करो दैट्स -6, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो दैट्स 12, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो दैट्स -24, दैट्स योर आंसर। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, जो ये थर्ड टर्म है, एक फर्स्ट टर्म से 9 है, यानी 3 + 9 = 12 हो गया। इसी तरह सेकंड भी, सेकंड क्या है, सेकंड टर्म जो है ये फोर्थ टर्म से कितना ज्यादा है 18, -6 = -24 + 18 दैट इज -6, ये सेटिस्फाई करता है, दैट इज योर आंसर इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको 4 नंबर जीपी में निकालने हैं जिसका थर्ड टर्म ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 और सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। इसमें हमने किया लेट द 4 नंबर्स इन जीपीबी ए आर स्क्वायर एंड AR क्यूब, या ये भी लिख सकते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। नाउ इट इज गिवन दैट थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, तो a3 इसको a1 के साथ, a3 होता है AR स्क्वायर, a1 हो गया a + 9, ये रिलेशन बनाई, ए को यहाँ लिया, यहाँ से ये उसके बाद है दूसरी कंडीशन है सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, इसमें भी a2 का वैल्यू दिया, AR को a4 3 का दिया, AR क्यूब अननोन उसको एक साइड किया, AR - AR क्यूब 18, AR लिया कॉमन 1 - r स्क्वायर 18, लेकिन अब दोनों को सॉल्व हमें करना है, इट इज बेटर यहाँ r स्क्वायर -1 है, यहाँ 1 - r स्क्वायर, इसलिए माइनस कॉमन, ठीक है। उसके बाद डिवाइड किया, जब डिवाइड किया r का वैल्यू दिया है -2, r का वैल्यू सबस्टिट्यूट किया फर्स्ट में, जब सबस्टिट्यूट किया a × r स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया 4 - 1, यहाँ से a का वैल्यू आ गया 3, तो जो यहाँ पे 3 नंबर्स है AR स्क्वायर AR क्यूब, ये है 3, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करो 12, -2 से मल्टीप्लाई करो -24, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो दीज वर सम क्वेश्चंस अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।